ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالعلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن علق. المولن الحق بالحق ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ومظلومین ولعنۃ اللہ علیہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد تبارک تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. وقال اللہ حق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام حمد و ثنا و ستائش اس خداوند کریم کے لیے جس نے مکروہات کی گرہ کھول دی ہے، جس نے سختیوں کی تیزی کو کند کر دیا. تمام حمد و ثنا و ستائش اس خداوند کریم کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی جان ہے. یقیناً عزیزان محترم، وہ رحمان الرحیم، وہ قادر مطلق، وہ ذات یگانہ، وہ ذات واجب، جس نے زندگی دی ہے اور جو موت بھی دینے والا ہے. براہ راست ہر انسان کو پتہ ہے کہ خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے. لیکن عزیزان محترم، ہماری تیاری کیا ہے؟ کیا لے کر جائیں گے؟ سورہ حجرات کی 14 نمبر کی آیت میں نے اپنا سرمایہ کلام بنایا ہے، اپنی مجلس کا عنوان بنایا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خداوند کریم کہتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عزت والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، اگر آج کے زمانے کے انسان سے ہم یہ سوال پوچھے کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا عزت دار کون ہے، تو وہ کہے گا کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس رتبہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، جس کے پاس مرتبہ ہے، جسے لوگ جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. لیکن اللہ نے اس بات کو بائیکاٹ کر دیا. خدا کے نزدیک یا امیر ہو یا غریب ہو، یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، یا بچہ ہو یا مسکین ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک عزت دار ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یقیناً عزیزان محترم، تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اگر کوئی سوال پوچھ لے واٹس اے ڈیفینیشن آف تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں، تو تقوی کے دو معنی نکلتے ہیں. ایک خوف الہی میں ڈرنا، یعنی اللہ کا خوف دل میں رکھنا. دوسرا گناہوں سے پرہیز کرنا. دونوں کا میننگ ایک ہے. اگر کوئی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ خود بخود گناہوں سے بچے گا، خود بخود گناہوں سے دور ہو جائے گا، خود بخود گناہوں سے برطرف اپنے آپ کو کر لے گا. لیکن جس کے دل میں خوف الہی نہ ہو تو اس کے سامنے آپ پورا قرآن پڑھ دیں، پوری حدیثیں پڑھ دیں، لیکن اسے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ سے خوف کیسے کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا کیسے ہے، تقوی کیسے اختیار کرنا ہے. دوسری چیز ہے عزیزان محترم، تقوی کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ تقوی دو قسموں کی ہوتی ہے عزیزان محترم. ایک تقوی عام، ایک تقوی خاص، یعنی عام تقوی اور خاص تقوی. عام تقوی کسے کہتے ہیں؟ خوف جہنم سے، حرام سے پرہیز کرنا.
عام تقوی کہلاتا ہے۔ اور خاص تقوی کسے کہتے ہیں؟ خوف جہنم سے، حرام سے پرہیز کرنا اور شبہ حرام سے پرہیز کرنا، دونوں الگ کوالٹی ہے۔ ایک فقط حرام سے پرہیز کرنا، ایک شبہ حرام سے بھی پرہیز کرنا، یعنی جہاں شک ہو جائے کہ یہاں حرام ہو سکتا ہے، حرام ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، وہاں بھی نہ انسان جائے۔ تو ایسے متقی ہوتے ہیں زمانے میں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے کہ جو شبہ حرام سے بھی بچے، حرام سے بھی بچے۔ عزیزان محترم، میں چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں تقوی کے متعلق۔ کتاب گناہ کبیرہ، علامہ دستغیب شیرازی کتاب، بہترین کتابوں میں کتاب ہے۔ اس میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے لقمہ حرام کا ایک لقمہ اگر اسے ترک کر دیا، لقمہ حرام کا ایک لقمہ اگر ترک کر دیا، وہ اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے 2000 مستحبی نماز پڑھنا۔ اللہ اکبر! ایک لقمہ حرام، کتنی بڑی سعادت! اگر انسان لقمہ حرام سے پرہیز کر لے تو 2000 مستحبی نماز کا ثواب۔ اب عزیزان محترم ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ میں مارکیٹ گئی، جانے کے بعد مجھے ایک فیل ہوا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ لاری پر، ٹھیلے پر لوگ لے کر کلچا کھڑے ہیں یا پانی پوری ایکسیٹرا جو بھی لے کر کھڑے ہیں۔ میں نے دیکھا، میرا دل للچایا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مجھے تو احساس تھا بس مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کچھ کھانا ہے۔ اگر اس وقت میں یہ سوچ لوں کہ یہ دینے والا، یہ بنانے والا آیا کوئی مسلم ہے یا نہیں ہے، میں کھا رہی ہوں، کیا یہ لقمہ حلال ہے یا لقمہ حرام ہے، اگر اس وقت میں وہ لقمہ حرام کو ترک کر دیتی تو خدا مجھے اجر کیا دیتا؟ 2000 مستحبی نماز۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی انسان اپنے مالک کا ایک پیسہ بھی اسے واپس پلٹا دے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے 70 حج مقبول خدا کے راہ میں کیا ہو۔ اللہ اکبر! کتنا بہترین اجر دینے والا اللہ ہے کہ اگر جس کے دل میں جہد و تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اس کا ہر عمل بارگاہ خداوند میں قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کیا کرے؟ کہاں سے تقوی لائے، کہاں سے پرہیزگاری لائے؟ کیونکہ ہم نے تو مرتبہ ان عزت دار لوگوں کو دیا ہے کہ جو کپڑے بہتر پہنتے ہیں، پرفیوم لگا کر آتے ہیں، بہترین پرس لے کر آتے ہیں، بہترین ردائیں پہن کر آتے ہیں۔ ہم نے انہیں نہیں مرتبہ دیا جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو سچے ہیں۔ عزیزان محترم، رسول کی بھی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں۔ آپ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے بھی ایک حدیث فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز اس طرح کھڑے ہو کر پڑھو کہ زمین میں جس طرح میخیں گڑ جاتی ہیں، روزے اس طرح رکھو کہ جیسے روزے اس طرح رکھو کہ جیسے کہ ایک سوکھی لکڑی کمزور ہو جاتی ہے یا تمہاری کمر کمان کی طرح بھی ہو جائے تو بھی خدا تمہارے ان عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ تمہارے دلوں میں زہد و تقوی یعنی گناہوں سے پرہیز کرنے کا قصد نہ ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھ رہی ہوں؟ بھئی خوف جہنم سے۔ اگر آپ بوڑھے سے پوچھے، جوان سے پوچھے، مسکین سے پوچھے، جو بھی نماز پڑھتا ہے آپ اس سے پوچھے، امیر سے پوچھے اتوا غریب سے پوچھے، اگر آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی تو خوف جہنم میں پڑھ رہا ہے۔ روزہ کیوں رکھا؟ خوف جہنم میں، کہ اللہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ بہترین عمل کیوں کیا؟
ताकि खुदा मुझे जन्नत दे दे। यानी पता चला ये कि कुल मिलाकर बात ये है कि इंसान जो भी खुदावंद आलम की इबादत करता है खौफ जहन्नम में शौक़ जन्नत में करता है। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, मुझे एक ज़ात ऐसी नज़र आई है कि मैं उनकी जूतियों पर कुर्बान जाऊं जो खुद इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ खुदावंद आलम, अली ने तेरे खौफ जहन्नम से तेरी इबादत नहीं की, शौक़ जन्नत में तेरी इबादत नहीं की, बल्कि तू काबिल सजदा था, तू लायक सजदा था, इसीलिए तेरी इबादत की है। नारे हैदरी अली। अज़ीज़ान मोहतरम, यह है अली इब्न अबी तालिब की ज़ात जिसने बता दिया है ज़माने को कि तक़वा क्या होता है। एक शख्सियत है कि जिसे मालूम है कि खुदा मुझे जहन्नम में डाल ही नहीं सकता, तो भी वह तक़वा इख्तियार किए हुए। एक हम हैं कि हमें यह नहीं पता कि हम जहन्नम के किस कोने में फेंक दिए जाएंगे, उसके बावजूद भी हमारी इबादत क्या है? कुछ भी नहीं। अजीज़ान महतरम, आइए एक छोटा सा वाक़या आपके नज़र करूँ कि आज के ज़माने के लोग तक़वा किसको समझते हैं, तक़वा किसे जानते हैं, तक़वा किसे मानते हैं। 3 औरत रसूल खुदा की बारगाह में आई, आके फरमाया, या रसूल अल्लाह। पहली ने तीनों शिकायत लेकर आई, किसकी? अपने शौहरों की। अल्लाह अकबर। औरतों को ज़्यादातर अगर किसी से मसला है तो अपने शौहर से है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिशन चलते हैं। अगर शौहर ने कहा ये है तो मैंने कहा नहीं ये है, शौहर ने कहा ए तो मैंने बताया बी, क्योंकि अज़ीज़ान मोहतरम दोनों के माइंड अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे के बरअक्स होते हैं, अपोजिशन में होते हैं। और खुदा हम सब की, मेरी यही दुआ है कि खुदा हम सब के अंदर अंडरस्टैंडिंग रखे अपने अपने शौहरों के साथ, ताकि हम उनके इज्जत और मर्तबे को समझ सकें। बहरहाल 3 औरत आई। आने के बाद पहली औरत ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने गोश्त खाना छोड़ दिया। दूसरी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने खुशबू लगाना छोड़ दिया। तीसरी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने हुकूक़े ज़ौजियत देना छोड़ दिया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बस इतना सुनना था, रसूल खुदा जलाल में आ गए, ग़ैज़ व ग़ज़ब में आ गए। मैं एक जुमला हर मजलिस में कहती हूँ कि डरो मुसलमानों उस वक्त से कि रहमत के माथे पर जलाल का पसीना आए। तारीख के जुमले हैं कि एक मर्तबा रसूल खुदा अपने रिदा को संभाले हुए अपने घर से निकले। आलम यह था कि आपकी रिदाए मुबारक ज़मीन पर ख़त कर रही थी, जलाल के आलम में थे। मस्जिद नबवी में आए, मिंबर पर बैठे, हम्दो सनाए खुदावंद आलम किया और फिर उसके बाद कहा, क्या है लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मुझे मोहम्मद को रसूल नहीं जानते? सबने कहा बिल्कुल जानते हैं। कहा मेरी बताई हुई चीज़ों पर तुम अमल नहीं करते? कहा बिल्कुल करेंगे। तो आपने फरमाया कि सुन लो कान खोलकर कि रसूल यानी मोहम्मद खुशबू भी लगाते हैं, गोश्त भी खाते हैं और हुकूक़े ज़ौजियत भी अदा करते हैं। जिन लोगों ने इससे ताल्लुक़ तोड़ लिया, गोया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल खुदा ने बता दिया कि आज के ज़माने के लोग क्या कहते हैं कि हैवान न खाओ 40 दिन तक, तो आपकी ज़बान में तक़वा आ जाएगा, आपकी ज़बान मुत्तक़ी हो जाएगी, आप मुत्तक़ी हो जाएंगे। बहुत से लोगों के बारे में मैंने खुद ने देखा भी है, सुना भी है। ऐसे कहते हैं कि आप 40 दिन तक अगर हम गोश्त नहीं खाएंगे, फ़िश, गोट या शीप, एवरीथिंग जो भी हम खाते हैं हलाल जानवर, अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारी ज़बान में तहारत आ जाएगी, हमारी ज़बान मुत्तक़ी हो जाएगी, हमारी दुआ कबूल होगी। ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत कहती है कि हराम से परहेज करने से मुत्तक़ी बनता है इंसान, हलाल से परहेज करने वाला मुत्तक़ी नहीं हो सकता। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो बात थी लोगों की। अब तारीख़ इस्लाम की एक छोटा सा एक वाक़या, किताब का नाम है पंदे तारीख़, जिल्द 4। इसका एक वाक़या मैं आपके नज़र कर रही हूँ, आपके समात के हवाले कर रही हूँ। वाक़या है बुशरे हाफ़ी का। अज़ीज़ान मोहतरम, कौन है बुशरे हाफ़ी? वो इंसान जो पहले गाना भी सुनता था, म्यूज़िक भी सुनता था, शराब भी पीता था, हर वो अमल करता था जो खुदा को नापसंद था।
एक मर्तबा बुशरे हाफी के घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। पार्टी ऑर्गेनाइज थी, पार्टी में शराब चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था, सब कुछ होता है जो होता है आजकल पार्टीज में, वैसे उसी तरह की पार्टी चल रही थी। नागाहा एक मर्तबा बुशरे हाफी की एक कनीज कचरा फेंकने के लिए बाहर निकली, और जैसे ही कचरा फेंकने के लिए बाहर निकली, उसकी नजर एक नूरानी शख्सियत पर पड़ी, ऐसे खूबसूरत जाहो जलाल वाली शख्सियत कि जिसे देखकर वो वहीं रुक गई। एक मर्तबा आने वाले ने कहा कि ये जो तुम्हारा आका है ये गुलाम है या आज़ाद है? कनीज ने कहा बेशक मेरा आका आज़ाद है। मुस्कुरा कर आने वाले ने कहा यकीनन ये आज़ाद ही होगा। अगर ये किसी का अब्द होता, बंदा होता, किसी का गुलाम होता तो ये हरकतें न करता जो इसके आका को पसंद ना हो। बस इतना सुनना था, कनीज अंदर चली गई, आप वहां से चले गए। अजीज़ान मोहतरम, बुशरे हाफी ने अपनी कनीज से पूछा इतनी देर क्या हुई? उसने कहा कि बाहर एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा ये जो आका है जिसके घर में म्यूजिक बज रहा है, शराबखोरी हो रही है, जिसके घर में नाच गाना हो रहा है, क्या ये आज़ाद है या गुलाम है? मैंने कहा मेरा आका तो आज़ाद है। उन्होंने फरमाया बेशक ये आज़ाद होगा, अगर गुलाम होता तो ये गुनाहों के काम नहीं करता। बस इतना सुनना था। बुशरे हाफी ने उसी वक्त वो म्यूजिक बंद करवाया, वो जो पार्टी था उसे खत्म करवाई, और पार्टी को खत्म करके नंगे पैर उस बुजुर्ग को ढूंढने निकले। और थोड़ी देर के बाद एक जगह पे वो बुजुर्ग नजर आए। जब उन्होंने बुजुर्ग की तरफ देखा तो वो और कोई नहीं, हमारा और आपका सातवां मौला मूसा काजिम था। अल्लाहुम्मा सल्लि मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम। जैसे ही उन्होंने सातवें इमाम को देखा, जाहो हशम ऐसा था, जाहो जलाल ऐसा था, ऐसी नूरानी सूरत कि एक मर्तबा कदमों पे गिर के कहता है मौला मुझे माफ़ कर दीजिए, मौला मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी नाराज़गी का सबब जो मैं बना, अल्लाह की नाराज़गी का सबब जो मैं बना, मुझे माफ़ फरमाइए। आपने एक मर्तबा उसे माफ़ फरमाया, और वो जब से मौला के एक ग़ुलाम में उसका शुमार हुआ, मौला के साहबी में शुमार हुआ, लेकिन वो नंगे पैर अपने घर से दौड़ा था। उसके बाद उसने कभी चप्पल नहीं पहनी, उसके बाद उसने कभी शूज़ नहीं पहना, इसीलिए उसे बुशरे हाफी कहते हैं। हाफी कहते हैं नंगे पैर वालों। अब अजीज़ान मोहतरम, यहाँ एक जुमला कहने को जी चाहता है। अगर बुशरे हाफी के दिल में कहीं ना कहीं मार्फत खुदावंद आलम न होता, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉर्नर कहीं तकवे से भरी ना होती, तो क्या वो इतनी जल्दी राह रास्त पर आ जाते? हरगिज़ नहीं। इंसान को ये दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद करीम तेरा खौफ हमारे दिल में हमेशा बरकरार रहे, तू हमेशा हमारे दिलों पर तारी रहे, ताकि हम वो गुनाहों से बच सके जिससे तू नाराज़ होता है। अजीज़ान मोहतरम, एक छोटी सी मिसाल और देती चलो। अगर हमारा शौहर इक्वली 1-1.5 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए नाराज़ हो जाए, ना हमें खाने में दिल लगता है, ना हमें किसी चीज़ में दिल लगता है, लेकिन अजीज़ान मोहतरम जैसे ही हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होता है हम खाना भी खाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। एक शौहर जिसे खुदा ने मजाजी खुदा का रुतबा दिया है, तो आप सोचिए अजीज़ान मोहतरम, वो अल्लाह अगर हमसे नाराज़ हो जाए तो हम कैसे उसकी ग़िज़ा खा रहे हैं, कैसे उसकी ज़मीन पर चल रहे हैं, कैसे उसकी दी हुई सांसें ले रहे हैं। बस यही दुआ है कि खुदावंद करीम तो हमारी इस हकीर से मुख्तसर से इबादत को हमसे कबूल फरमा, हमें मुत्तकी और परहेज़गार बना, ताकि हम हमेशा राह रास्त पर रहें। अजीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह नेक्स्ट मजलिस में, दूसरी मजलिस में, इस मजलिस का जो पार्ट 2 है हुदल लिल मुत्तकीन, कि कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है, इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में उसके बारे में गुफ्तगू होगी। बस चंद जुमले मसाइल जो कि माले मजलिस है। हाँ अजीज़ान मोहतरम, करबला से शाम आ गई हैं बीबियाँ। क्या है ये शाम? वो बाज़ार कि जिसमें ज़ैनब कुबरा को सरबराह ना
शहजादी को खड़ा किया गया। अज़ादारों, तारीख के जुमले हैं। इमाम सैयद सज्जाद से जब भी कोई ये पूछता, मौला सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ हुई, सबसे ज़्यादा गम कहाँ हुए, मेरा मौला सीने पे हाथ रख के कहता, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। पूछने वाले ने पूछा, मौला सब तो शहीद करबला में हो गए थे, फिर आप शाम को क्यों रोते हैं? मौला ने फरमाया, तूने इंसाफ नहीं किया। अरे शहीद होना और बात है, माँ बहनों को खुला सर लेकर यजीद के दरबार में जाना और बात है। अज़ादारों, आज से 100 साल पहले एक आलिम दीन अल हसन शिराजी नाम के थे। उन्होंने नजफ में अपने घर में मजलिस कराई। आलिम दीन ने जुमला पढ़ा, अली की बेटी शाम में आ गई, अली की बेटी दरबार यजीद में आ गई। शराबियों का मजमा था, अली की बेटी थी, बस इतना सुनना था। आलिम दीन ने पढ़ने वाले से कहा, जरा एक मर्तबा फिर कहो। उसने कहा, अली की बेटी दरबार शाम में आ गई। उन्होंने कहा, फिर कहो। उसने कहा, अली की बेटी दरबार शाम में आई। बस अज़ादारों, आलिम दीन शिराजी ने अपने सर पे मातम करना शुरू किया, अपने मुंह पे मातम करना शुरू किया। अब बस एक ही जुमला कहते जाते, खुजा अली की बेटी, खुजा दरबार शाम। अज़ादारों, पूछने वाले ने पूछा, आगा आप इतना रोते क्यों है? तड़प के कहा, क्या तुम्हें नहीं पता ये उस खातून की बेटी थी कि जिसका जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया। आज़ादारों, खुदा किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम सैयद शहदा के। अज़ादारों, बस चंद जुमले मसाइब है। तारीख कहती है कि एक मर्तबा 4 साल की सकीना अपने भैया के करीब आई, आके कहा, भैया ये शाम के बाजार में कब तक खड़ा रहना पड़ेगा? एक मर्तबा सज्जाद ने किसी से पूछा है, भाई कब तक इस बाजार में खड़े रखोगे? उसने कहा, अभी दरबार सजाया जा रहा है। जुमले हैं, बस इतना सुनना था। गैरतदार बीबी तड़पने लगी। ज़ैनब कुबरा ने आवाज दी, सज्जाद इनसे कहो कि आप मुझे शाम के दरबार में ले चले, अब मेरे अंदर पत्थर खाने की ताकत नहीं। आज़ादारों, तारीख कहती है कि जिसके जो मन में आता था बागी कह के मारता था। अरे कोई पत्थर मारता था, कोई कुछ और फेंक के मारता था। अज़ादारों, बस एक जुमले पे मैं मसाइब खत्म करूं। तुम्हें पता है ना, बीवियों के हाथ इस तरह पसे पुष्ट बंधे थे। अब मुझे सवाल पूछ रही हूँ, दिलों पे हाथ रख के जवाब देना। अगर किसी के हाथ बंधे हो और उस पे गर्म पानी फेंक दिया जाए, और अज़ादारों, तारीख कहती है गरम गरम पानी फेंका जाता, शहजादियाँ तड़पती रहती। अज़ादारों, एक जुमले पर मसाइब तमाम। तारीख के जुमले हैं। सकीना करीब आई, आके कहा, भैया मेरा एक सवाल है। मेरे मौला ने तड़प के कहा, सकीना पानी ना मांग लेना। कहा, भैया मैं तुझसे पानी नहीं मांगूंगी। कहा, क्या चाहती हो? कहा, भैया शिम्र से कह दे सकीना को ताजिया ने मार ले, लेकिन मेरी पुश्त पे ताजिया ने मारे। ऐ भैया देख मेरे तमाचों के निशान। ऐ भैया शिम्र ने मेरे चेहरे पे ताजिया ने शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर। 4 साल की बच्ची, शाम का बाजार, सैयद सज्जाद अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। खुदावंद करीम तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का
تو ہماری اس مختصر سے عبادت کو ہم سے قبول فرما۔ اللہ اس کورونا وائرس کی وبا کو جلد سے جلد دور کر دے۔ اللہ ہمارے امام کو ظہور فرما۔ تقبل منا